we develop a procedure for analyzing the position of a body, velocity of a body, as well as acceleration of body. Body or particle moves in one dimension with constant acceleration. ऐसा last chapter में discuss करे हो. जो chapter 3 था जो भी उनमें ऐसा जगह बॉडी जगह है या कोई पार्टिकल जगह मूव करे तो कहीं भी एक डायरेक्शन में वन डायमेंशन में whatever x में y में z में पर के हिकड़े लम्बे ते हिकड़ी डायरेक्शन मूव कंदो विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो असा उन जी पोजीशन के डिफाइन कर सको था उन जी वेलोसिटी डिफाइन कर सको था या उन जी एक्सेलरेशन डिफाइन कर सको था आई असा उन बॉडी जी एक्सीलरेशन के मालूम करण खां पोए असा के भी लम्बे ते उन जी वेलोसिटी के असा डिफाइन कर सको पिया by using this equation Vx is equal to V naught x plus AXT. Vx stands for you can say Vx जेका है Vx जेको है ही जेका है final velocity है V naught x जेका है initial velocity along the x-axis, Ax is the acceleration along the x-axis and T is the time. So it means this is the formula याद हो Vf is equal to Vit plus At जो फार्मूला अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉज जेके हुआ मोशन के बारे में Vf is equal to Vi plus At जेको भी है तो वो तव्हां साॻियो नमूने सां जेको आहे सिमिलरली जेको तव्हां जेकॾहिं पोजीशन जेको आहे उहो तव्हां मालूम करे सघो था कंहिं बॉडी जी like formula x is equal to x naught plus v naught x t plus half t ax t square where x is the final position, x naught is the initial position, v naught x is the initial velocity along the x-axis, t is time, again ax is the acceleration along the x-axis. So he जेको formula है. Now particle moves in 3 dimensions with constant acceleration. Consider a particle moves with constant acceleration. So constant acceleration का मुराद क्या है मतलब constant acceleration से क्या मीनिंग है कि constant acceleration मीनिंग ये है कि भाई वो जो acceleration है किसी बॉडी की किसी पार्टिकल की वो does not vary हो उसमें कोई चेंज ना आए उसके मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए और ना उनकी डायरेक्शन में क्योंकि एक्सीलरेशन उस वक्त पैदा हो सकती है जब उनकी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए या किसी बॉडी के मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज आए या उस बॉडी का वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए तो whenever the change occur in the magnitude velocity as well as direction velocity तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो कंसीडर ये कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से so we can represent the acceleration of a vector with 3 components. So acceleration A is you can say this is the A is the acceleration. So इसके 3 components में हम इसको कर सकते हैं ax along acceleration along the x-axis, ay acceleration along the y-axis and az acceleration along the z-axis with the constant. तो constant हम कर सकते हैं we can obtain the general solution general equation for motion with constant acceleration by setting ax is equal to constant ay is equal to constant or az is equal to constant so by using these this kind of description we can obtain the general equations for motion with constant acceleration तो सिंपल है इतना डिफिकल्ट ना है तान के तकरीबन पढ़ चुका हूं देखो भी है so now the particle start at t is equal to 0 with the initial position ता याद होगा लास्ट टाइम ऐसा यही जो कई सी इक्वेशन ये जगह है x is equal to x naught plus v naught xt plus half t xt so similarly ये जो सागिया the particle start at t is equal to 0 with the initial position so r naught is equal to x naught i plus y naught j plus z naught k as a time 0 now basically time is equal to 0 it means कि जने तव्हां को एक्सपेरिमेंट कोई ऑब्जर्वेशंस के स्टार्ट कयो था उन वक्त जो टाइम था चुनो
वो स्टार्टिंग टाइम होगा वो तव्हां उनके t is equal to 0 कंसीडर करना है। वैसे टाइम जो करें 0 ना होगा तो टाइम सपोज करो हींअर 11:45 मिनट है तो यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट, यू वांट टू स्टार्ट योर ऑब्जर्वेशन, तो मींस तव्हां जो को हींअर टाइम को जो 11:45 मिनट के तव्हां t is equal to 0 कंसीडर कर सको था। So in the initial velocity v naught is equal to v naught x I plus v naught y j plus v naught z. So v naught x means along the x-axis, y means along the y-axis, and z is equal to along z-axis. Because this is a general you can say the general equation or general whatever present here. So now in three one-dimensional equation, vx is equal to v naught x plus xt, vy is equal to v naught y plus ayt, vz is equal to v naught z plus azt. तो मीन्स ही इनमें का जेको हिकिड़ी इक्वेशन जेका आहे वो तव्हां के बि टाइम में लम्हे ते यूज़ करे सघो था, चाहे जेकॾहिं तव्हां एक्स एक्सिस में या तव्हां वाई एक्सिस में या तव्हां ज़ेड एक्सिस डायरेक्शन में, त का बि हिकु तव्हां यूज़ करे सघो था। ऑफकोर्स ई टई इक्वेशंस आहिनि फॉर 3 डायमेंशन लाइ, पर तव्हां जॾहिं बि तव्हां स्टार्ट कंदा एक्सपेरिमेंट वग़ैरह जॾहिं बि को बि त तव्हां जेको आहे उहो हिकु ई जेको तव्हां मतिलबु यूज़ कंदो। So we can write is सॼी इक्वेशन जेके टे इक्वेशन तव्हां आहिनि along the x axis जे लाइ, along the y axis जे लाइ ऐं along the z axis जे लाइ तव्हां इन टिनी खे सिंगल में लिखी सघो था ही लाइक वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस at। सो ही समझो त ही असां इक्वेशन नंबर 1 लिखूं था। ही बेसिकली ही जेका टे इक्वेशंस आहिनि उन जो उनके कंबाइन सिंगल फॉर्म में लिखियो वियो आहे। So equation 1, v vector is equal to v naught plus at represent the 3 one-dimensional equation for the components of the जो particle move to करे में। Second में सा, so now हिन में जो second term use थेला ही जो a and t जो use थेला second term जो इसका second term इसमें use किया गया है at। ये क्या है basically? ये क्या है कि ये जो है ये it involves the multiplication of vector by the scalar t. So it means we have in this second term we have vector a because acceleration is a vector quantity, t is a scalar quantity. So this is the multiplication of the two components. One component is the vector a and second is the scalar t. So it gives a vector of length at, it gives a vector of length lt that points in the same direction as the original vector a. डायरेक्शन जो ओरिजिनल वेक्टर जो को ता यूज कयो हो, एक्सीलरेशन वेक्टर यूज कयो हो, a बार जो यूज कयो हो, उन जी जेको जेका न जी जे प्रोडक्ट आहे a ऐं t जी, उहा उन जी लेंथ के डिफाइन कंदो। लेंथ के मींस जितने टाइम t में जितरो डिस्प्लेसमेंट जो तय थियो आहे at उसको उस लेंथ को डिफाइन करेगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी एज द वेक्टर a। डायरेक्शन जो जेका होगी वो सागी होगी। So now in 3 dimensional equation form position ax x is equal to x naught plus vxt plus half at axt square and y is equal to y naught plus y naught t plus half ayt square basically, and as well as z में भी ये सागी को हिकड़ी इक्वेशन है। इसमें एक ही इक्वेशन में सिर्फ फर्क ये है कि हमने ये along the x axis है, this is along the x axis, this is along the y axis, this is along the z axis, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ये तीनों सेम है। और अगर इन तीनों को हम सिंगल में लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। जिस तरह हमने इन तीनों को लिखा था, अगर आपको याद है ये तीन इक्वेशन देर आर टे इक्वेशंस हुई उनके तव्हां सिंगल में ही लिखी सघो था। ये टे इक्वेशन जेके तव्हां हुयूं, ये टे इक्वेशंस जेके पहन तव्हां इन टिनी इक्वेशन के तव्हां सिंगल फॉर्म में ही लिख सघो था। तो साॻे नमूने सां जेके तव्हां इनके लिखण चाहियो हिनन के जेके पोजीशन के जेके तव्हां लिख सघो सिंगल में r इज इक्वल टू r नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो जितने साॻी ॻाल्हि आहे, माना ही जेके अलॉन्ग द x एक्सिस आहे ऐं ही जेका अलॉन्ग x एक्सिस आहे, अलॉन्ग द y एक्सिस, अलॉन्ग z एक्सिस, इन टिनी के जेके तव्हां कंबाइन लिखण चाहियो तो तव्हां इन में
इन सिंगल फॉर्म में लिखी सको था। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट नाउ टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, yes, projectile motions. So now, the projectile motion near the earth surface is a common example of motion in two dimension. This is a जो सबसे ये कॉमन एग्जांपल है कि ये मोशन टू डायमेंशन में होती है। मींस एट द सेम टाइम आप कैसे साइमल्टेनियसली एक्स में भी होती है, वाई में भी होती है, या वाई में जेड में होती है, या एक्स जेड में होती है, लेकिन दो डायमेंशन में होती है। तो वो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है। अब इसके एग्जांपल आप लें गोल्फ बॉल। जब आप किसी अगर आपने गोल्फ ये देखी है गोल्फ रांदि है जैसे को प्लेयर उनके स्टिक खणंदो आहे गोल्फ बॉल के, तो उहा जेका मोशन हूंदी आहे ऑलमोस्ट टू डायमेंशन हूंदी आहे। सिमिलरली इफ यू बेसबॉल जॾहिं तव्हां जेको हिटर जेको हूंदो आहे के बेसबॉल हिट कंदो आहे, तो उहो जेको बेसबॉल जेको लॉन्च थींदो आहे, जो हिटिंग बैट हिट करण खां पोइ जेको ईंदो आहे, तो उन सभिनी जेका उनजी मोशन जेका हूंदी आहे उहा जस्ट लाइक मोशन इन टू डायमेंशन में हूंदी आहे। तो मोशन इन टू डायमेंशन जो कॉमन एग्जांपल जेको आहे वो छा आहे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। नाउ जब आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करना चाहते हो, तो हमें कुछ चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो अजम्पशन ये है कि भाई सबसे पहले आपको नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, मींस आपको जो एयर रेजिस्टेंस है जो हमारे एयर में, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में, अर्थ की एटमॉस्फेयर में, उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग। जैसे जब तक आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो आपको उस टाइम में एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अब सवाल ये कि भाई ये क्यों करते हैं। अगर आपने कॉलेज साइड की फर्स्ट ईयर बुक अगर आपने वहां पढ़ी होगी, तो उसमें 3 चीजें दी गई हैं कि इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव टू assume 3 basic things. Number 1, air resistance must be neglected. Number 2, जो आपकी जो पाथ जो आपकी जो थ्रू द मोशन उसमें जो जी होती है, स्मॉल जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट रहेगी। और तीसरी बात ये कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मींस 3 चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ती। अगर आपने फर्स्ट ईयर कॉलेज साइड जी जेकॾहिं तव्हां बुक पढ़ी हूंदी फिजिक्स जी, में 3 चीज़ों जो जिक्र आहे, पर हिते सिर्फ़ छा असां डिस्कस कंदासीं कि यू मस्ट निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। व्हाई? तो सवाल है व्हाई। नंबर 1 कि एयर रेजिस्टेंस इज अ नॉन कांस्टेंट फोर्स। नंबर 1 एयर ड्रैग फोर्स चऊं या एयर रेजिस्टेंस इज अ नॉन कांस्टेंट फोर्स, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ए कांस्टेंट फोर्स। एंड नंबर 2, it simplifies the calculations, means by neglecting a resistance, नंबर 1 जो ओनली वाई। तो सवाल ऊपर है तो क्यों भाई, क्यों हम ये करते हैं, तो उसका जवाब ये है कि भाई नंबर 1 जो है आपके पास एयर रेजिस्टेंस इज ए नॉन कांस्टेंट फोर्स है, नंबर 2 इट सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, बस ये है। तो दैट्स व्हाई हम इसको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, इनिशियल पोजीशन मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इंस्टेंट ऑफ लॉन्च ऑफ प्रोजेक्टाइल। जितना तमाम बेसबॉल के हिट कयो था, जितना तमाम गोल्फ बॉल के हिट कयो था, तो उन वक्त जेका मोशन हुंदी, उन वक्त जेका इनिशियल वेलोसिटी जेका हुंदी, असां चवंदा तो वो छा हुंदी, उहा जेका इनिशियल वेलोसिटी जेका हुंदी वो v नॉट हुंदी या मजल वेलोसिटी। You can say this is the initial velocity or muzzle velocity is directed at an angle phi naught from horizontal. जॾहिं तव्हांजो प्रोजेक्टाइल लॉन्च थींदो, तॾहिं प्रोजेक्टाइल तव्हांजो मूव कंदो, तो उन वक़्तु इनिशियल वेलोसिटी केतिरी हूंदी, v नॉट, ऐं उहो एंगल केतिरी ठाहींदो हॉरिजॉन्टल प्लेन सां, x phi naught. Phi naught is nothing but an angle from the horizontal plane, because our x-axis, you can say if you are discussing motion into plane of x and y, then x जो को होंदो हॉरिजॉन्टल होंदो, y जो को वर्टिकल होंदो।
मींस एक्स एक्सिस सां जेको एंगल ठाहींदो तव्हांजो प्रोजेक्टाइल उहो हूंदो फाइ नॉट हूंदो। नाउ नंबर ॿी ॻाल्हि जेका आहे कि जॾहिं तव्हां इनखे डिस्कस कंदा आहियो, तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं तव्हां कोऑर्डिनेट्स खे ड्रा कंदा आहियो, इफ यू ड्रा ए कोऑर्डिनेट, तव्हां जेके कोऑर्डिनेट्स खे ड्रा कंदा आहियो त ही जेको हूंदो आहे हमेशह, जेकर सपोज कयो ही एक्स एक्सिस आहे, ही वाई एक्सिस आहे, त जेको ही जेको हूंदो आहे हमेशह पॉजिटिव हूंदो आहे, ऐं ही वाई एक्सिस हमेशह पॉजिटिव हूंदो आहे, ही वाई एक्सिस नेगेटिव ऐं ही एक्स एक्सिस नेगेटिव। मींस तव्हां जॾहिं तव्हां ड्रा कंदा आहियो जॾहिं तव्हांजो कोऑर्डिनेट्स, त पॉजिटिव डायरेक्शन जेको आहे करस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव हूंदो, ऐं वाई एक्सिस जेको हूंदो वर्टिकल जेको हूंदो वो अपवर्ड डायरेक्शन में छा हूंदो, अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये एक आप चूज कर लें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसा चूज कर रहे हैं कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, फाइनाइट बना रहा है, तो मींस जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका होगा वो पॉजिटिव होगा, और वर्टिकल जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्टिकल जो होगा वो डाउन डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास एक चूज करना पड़ेगा। So we also place the origin of the coordinate system at the location of launch, जो तांजो origin जेको हूंदो, जेके तव्हां हिकिड़ो जेकर तव्हां ही ड्रा था कयो, ही जो पॉइंट तव्हांजो origin हूंदो, इहो तव्हांजो x नॉट भी तव्हांजो 0 हूंदो ऐं y नॉट भी तव्हांजो 0 हूंदो, मींस x 0 0। आप you can say at point here you have x की वैल्यू भी 0 होंदी ऐं y की वैल्यू भी 0 होंदी, ठीक है। तो तव्हां जेकर हिकिड़ो रफ डायग्राम ॾिसो त ही ॾिसंदो त ही जेको तव्हांजो एक्स एक्सिस आहे, ही तव्हांजो वाई एक्सिस आहे। तो नाउ दिस इज द वी नॉट छा आहे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐं वो प्रोजेक्टाइल जेको आहे एक्स एक्सिस सां एंगल पे ठाहे फाइ नॉट। तो नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन। तो नाउ हिनमें तव्हांजी जेका आहे तव्हांजी एंगल जेका आहे वी वेलोसिटी जो आहे v naught x initial velocity along the x axis, v naught y initial velocity along the y axis, but v naught is the your initial velocity or muzzle velocity, so now initial velocity component अगर तव्हां डिस्कस करना चाहो तो v naught x is equal to v naught cos phi naught, और v naught y is equal to, because असां जेको तव्हां x axis सां जेको एंगल रखंदा आहियूं cos रखंदा आहियूं, v naught x is equal to v naught cos phi